بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ پروگرام میں شریک گفتگو جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، کل 5 اگست ہے، یوم استحصال منایا جائے گا پورے پاکستان میں۔ اس حوالے سے 2-3 اہم خبریں، اور پھر میں ناظرین کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ آج اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب کو، جو کچھ ہی دیر بعد ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے۔ شامی صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے نیا سرکاری نقشہ، سیاسی نقشہ جاری کر دیا ہے۔ کروڑوں دھڑکتے دلوں پر کشمیر رقم تھا، رقم ہے، آج نقشے پر بھی ظاہر ہو گیا ہے۔ تو مقبوضہ وادی کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا، ایل او سی کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ تو آج اس نئے سیاسی نقشے کی رونمائی کی تقریب ہوئی، وزیر خارجہ نے ڈیٹیل سے آگاہ کیا، وزیر اعظم نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ دوسرا، کل کے حوالے سے کشمیر پر سیاستدان بھی تمام جماعتوں کے ایک ہمیں آج دکھائی دیے۔ ایک KPC ہوئی دفتر خارجہ میں، شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی سربراہی کی، جس میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہم نے دیکھی۔ اور تیسری بات یہ کہ امریکہ میں مسلمان تنظیموں کی کامیابی دیکھنے کو ملی۔ اشتہاری کمپنی نے ٹائم اسکوائر نیو یارک میں رام مندر کا اشتہار چلانے سے انکار کیا۔ تو یہ کل کے دن سے جڑی چند اہم خبریں ہیں جن کو میں نے ناظرین تک پہنچانا مناسب سمجھا۔ لیکن سر، یہ جو نقشے پر آج مقبوضہ جموں و کشمیر ظاہر ہو گیا، کتنی اہمیت کی حامل یہ موو ہے پاکستان کی، اور اس سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، وزیر خارجہ نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی تو اس کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ منزل کی طرف ہمارا قدم ہے۔ دیکھیں، منزل تو ہم سب کی یہی ہے کہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور کشمیری ہمیں یہ یقین ہے کہ جب بھی حق خود ارادیت کشمیریوں کو حاصل ہوگا، وہ اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں دیں گے۔ اور یہی وہ خدشہ ہے جو 70 سال سے انڈیا کو چین نہیں لینے دے رہا۔ اس نے اقوام متحدہ کے سامنے جا کر اقرار کیا تھا اس بات کا کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے گا۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے اور وہ اپنے اس عہد سے مکر گئے، منحرف ہو گئے، اور آج بھی جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی، وہ ایک روشن حقیقت ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر کشمیر جو ہے وہ ایک ایسے مسئلے کے طور پر موجود ہے جس کا حل تلاش کرنا ہے۔ اور شامی صاحب، یہ جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں، یہ آج اس نئے نقشے میں بھی یہی نقطہ درج کیا گیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ ایک تو اس خطے میں یہ لکھا گیا ہے نقشے میں، انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر۔ دوسرا نیچے وضاحت کے طور پر لکھا گیا ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، فائنل سٹیٹس ٹو بی ڈیسائیڈڈ ان لائن ود ریلیونٹ UNSC ریزولوشنز۔ تو پروگرام میں سر ہمیں جوائن کر چکے ہیں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت کا۔ کل انتہائی اہم دن ہے کشمیریوں کے لیے، اہل پاکستان کے لیے۔ یوم استحصال ہم منا رہے ہیں اور اس کا آغاز آج نئے سیاسی نقشے سے ہوا۔ ذرا اسی سے بات شروع کر لیتے ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ نیا سیاسی نقشہ جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے، اس کو ہم UNO میں یا بین الاقوامی برادری کے سامنے کیسے رکھیں گے؟ کیا اغراض و مقاصد ہیں اور اگلا ہدف کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب۔ جی، آپ نے مجھ سے سوال کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہی سے سوال جی آپ کو سن رہے ہیں، آپ ہی سے سوال ہے کہ آپ کے نزدیک اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیشن کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ بے انتہا ضروری ہے اس وجہ سے کہ دنیا کے آگے ہم اپنا سٹیٹمنٹ نقشوں سے، اپنی گفتگو سے، اپنا قانونی تاریخ کے اعتبار سے اس کو کرتے رہیں گے۔ کچھ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی حقیقت میں یہ بات رکھی جانا انٹرنیشنل فورم پر کہ جی پاکستان کا یہ نقشہ ہونا چاہیے، اصول پارٹیشن کے اعتبار سے پاکستان کا یہ نقشہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں
सिंबॉलिक होती हैं। हम कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे कह रहे हैं। ये एक रिटरेशन है, एक हमारी जिद है दुनिया के सामने कि भाई इस मामले को किसी न किसी अंदाज से किसी न किसी सलूशन के तरफ ले जाओ। ये नक्शों का मामला भी दुनिया की तारीख में इसी एतबार से रहा है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है कि इस फोरम पर भी और इस अंदाज से भी पाकिस्तान का मुकदमा कश्मीर जो है वो लोगों की नजरों के सामने रखा जाए। ठीक, डॉक्टर साहब जो इस इलाके डॉक्टर साहब जब ये जी शामिल साहब, डॉक्टर साहब जब ये हम नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करेंगे तो इसकी एक सिंबॉलिक हैसियत होगी, क्योंकि ये नक्शा यूएनओ तो इसको कबूल नहीं करेगी शायद एज इट इज़। जिस दिन यूएनओ कबूल कर लेगी उस दिन हमारा मसला हल हो जाएगा। तो एक सिंबॉलिक हैसियत होगी और दुनिया के आगे एक याद दहानी कराने का एक नया तरीका भी होगा। डॉक्टर साहब इसमें कुछ नाक़िदीन ये मान रहे थे कि मुतनाज़े की हैसियत इस नक्शे से अंडरमाइन तो नहीं कहीं होती, क्योंकि हमने फिर से फरमाइएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कुछ नाक़िदीन ये कहते हैं कि जो मुतनाज़े हैसियत है इस खित्ते की, वो नक्शे में उस खित्ते को अपने यहाँ शामिल करने से कहीं वो अंडरमाइन तो नहीं होगी। मेरा ख्याल से कोई चीज अंडरमाइन नहीं हो रही। हम तो कानून के एतबार से मुसलसल चल रहे हैं। शिमला एकॉर्ड के अंदर ये हिंदुस्तान के साथ तय हुआ कि बायलैटरल डिस्कशन होगा। हम उसी कानून के दायरे कार में आज तक चलते आए जब तक इंडिया ने वो बायलैटरल डिस्कशन के लिए भी तैयार नहीं, यानी मल्टीलैटरल लेवल पर उसने हमने तय कर लिया चलो आपस में डिस्कस करेंगे, वो आपस में भी डिस्कस करने को तैयार नहीं है। आप किसी फोरम पर ले जाएं, वो पहले तो ये कहेंगे कि जी इस फोरम का नहीं है, इंटरनल मैटर है, फिर ये कहेंगे जी अगर इशू है तो हम बायलैटरल करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर ओपिनियन बनाने के एतबार से हर चीज जो आप कर सकते हैं वो आपको करनी चाहिए। और इस वक्त ये आसानी हो गई कि इमेजरी जो निकलती है वहां से, जो लॉकडाउन और मजीद लॉकडाउन की कैफियत वहां पर कश्मीर के अंदर है, वो बड़ी परेशान कुन है। यानी एक लॉकडाउन तो हमने सारी दुनिया में भी देखा कि कोविड का हुआ, मगर उसके अंदर कम से कम इजहार आजादी है, कम से कम जरूरत के एतबार से बाहर जा सकता है, कम से कम बीमारी के हवाले से उसका कुछ हो सकता है, कम से कम मईशत किसी न किसी अंदाज से चल रही है। वहां तो मैं आज ही तफसीलात देख रहा था तो तकरीबन 4 अरब डॉलर का मकबूजा कश्मीर की मईशत को नुकसान हुआ। ये अवाम का नुकसान हुआ, ये भारतीय हुकूमत का थोड़ी हुआ। तो लिहाजा जो जुल्म और सितम वहां पर है तो मुख्तलिफ अंदाज से दुनिया के सामने हम रखते चले जाएंगे तो हमारा मुकदमा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। शामी साहब मजीद आपसे कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब ये फिर अगला कदम एक ये भी तो हो सकता है ना कि हम अपनी कौमी असम्बली में और सेनेट में कश्मीर के लिए नशिस्तें मुख्तस कर दें। जी, इस बात का भी इम्कान है, इसके ऊपर भी डिबेट होने में कोई हर्ज नहीं है। इस बात का भी इम्कान है कि आप इन एब्सेंशिया जो खित्ता आपके पास नहीं है उसके लिए भी नशिस्तें मुख्तस करें, तो इसमें भी डिबेट होने में कोई मुज़ायका नहीं है। ठीक, तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आप किस तरह देखते हैं कि हमें अब किस तरह आगे बढ़ना होगा डिप्लोमेटिकली, हम क्या इक़दामात कर सकते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है कुछ सूरत हाल में कोई तब्दीली आए और भारत के अज़ाइम के सामने कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए, क्योंकि वो तो अभी जो इक़दामात उसके हैं वो तो जारी हैं, वो तो ख़त्म होने में नहीं आ रहे। जी, अच्छा, भारत के इक़दामात तो एक पूरा मुसलमानान हिंदुस्तान और भारत के हवाले से एक कैफियत के अंदर वो मुब्तला हैं। जब वो अपनी तारीख खुद मस्ख करना चाहते हैं, अपनी तारीख दोबारा लिखना चाहते हैं, उसके अंदर जो नफरत की कैफियत उन्होंने पैदा की हुई है सारे हिंदुस्तान में, उसके अक्कासी कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है। दुनिया के आगे हमने तो इसको दुनिया को भी बताया कि ये हिंदुत्व जो नाजी टाइप की सियासत है जिसके अंदर ये इसराइल से जिन्होंने सीखा है कि डेमोग्राफी कैसे बदली जाए, जैसे मगरिबी किनारे के हवाले से जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं या गाजा के एतबार से, जहां जहां ये कोशिश करते हैं डेमोग्राफी बदलने के एतबार से वहां सीखा। पैलेट गन्स का इस्तेमाल इन्होंने इसराइल से सीखा। जो ये सारी कार्रवाइयां हैं ये इसराइल से सीख कर कश्मीर के अंदर लगाना चाहते हैं। डेमोग्राफी की चेंजेस के हवाले से डोमिसाइल देना, लोगों को कश्मीर का इनहैबिटेंट करार देना, वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना, मगर ये इनकी चालाकियां और मक्कारियां हैं। शामी साहब आप वाकिफ हैं इस बात से कि ये दुनिया के अंदर ये काम
कभी नहीं होता है। अगर यहूदियों के खिलाफ यूरोप ने और जर्मनी ने कुछ किया तो यहूदी नस्ल कुशी करने की कोशिश तो की मगर कामयाब तो नहीं हुए। इसी तरह से हिंदुस्तान भी कामयाब होने का कोई इम्कान नहीं, हालात उसने खराब ही किए हैं और ये जख्म जो है ना, ये हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तान को खुद भी खराब करेगा। ठीक, डॉक्टर साहब एपीसी का कल शामी साहब जिक्र कर रहे थे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। शामी साहब उसी बारे में बात आप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने बड़ी खिदमत की है जब कोरोना वायरस के दौरान में उलमाए कराम को इकट्ठा किया, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के, और एक SOPs पर इत्तफाक हुआ और रमज़ान के दौरान भी और फिर ईद उल ज़ुहा के मौके पर भी उन SOPs को फॉलो करने की कोशिश की गई। तो क्या आप ये समझते हैं कि आला तरीन सतह पर जो मुल्क की सियासी क़यादत है उसको भी यकजा किया जाए और आप उनको मदऊ करें कि वो आपस के इख्तलाफात को पथे पुश डालते हुए कश्मीर के मामले में यक आवाज़ हों और एक पैगाम दें यकजहती का? जनाब अली, मैं इंशाअल्लाह, सेनेट ने मुझे कल दावत दी है सेनेट में आकर अपनी बात रखने के लिए, तो ये पहला मौका है कि सेनेट ने किसी सदर को दावत दी है। तो मैं समझता ये हूँ कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की सियासी सारी हुकूमतें जो अब तक आई हैं वो 19-20 सब ने कश्मीर के मामले में यकजहती का इजहार किया हुआ है। हमारी अपोजिशन और हमारी हुकूमत कश्मीर के मामले में हमेशा अपनी पोजीशन के एतबार से, और नेशनल असेंबली में जो पिछले साल रेजोल्यूशन 7 अगस्त को भी पास किया, तो सब इस पर हमेशा इकट्ठा रहते हैं। कोई हुकूमत ज्यादा कोशिश कर लेती है, कोई कम, हालात के एतबार से अक्कासी रहती है, मगर इसमें पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर मेरे ख्याल से सियासी इख्तिलाफ शामी साहब कभी भी नहीं रहा। कश्मीर के मामले में हम हमेशा इकट्ठा रहे, अल्लाह का एहसान है हमारे पर। आज भी फॉरेन ऑफिस में हमारे सियासी लीडर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक मुश्तरका तौर पर आवाज़ बुलंद की है, लेकिन मैं समझता हूँ जो आला तरीन सियासी क़यादत है, जो मुख्तलिफ जमातों के सरबराह हैं और वज़ीर आज़म समेत, उन सबको आप दावत दें और कम अज़ कम इस मसले पर वो एक मेज़ पर बैठकर यकजहती का मुज़ाहरा करें। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? आप इस पर गौर करेंगे? जी, इसका दो चीजें आप देख लें। एक आइन के एतबार से कुछ चीजें जो मेरे दायरे कार में आती हैं, मिसाल के तौर पर एक तो होती है कि नॉन पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से जो मैंने के साथ कोशिश की, वो ये कोशिश की कि मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ओपिनियन मेकर है मसाजिद के आइम्मा और उलमा, तो लिहाजा मैं समझता था कि कोविड के हवाले से अगर वो अपने लोगों के दरमियान ये बात फैलाएंगे तो पाकिस्तान में हमारी कामयाबी की तरफ बात जाएगी। अब ये जो मामला है, इनके अंदर पॉलिटिकल इनिशिएटिव की भी जरूरत है। तो ये सदर का ओहदा डिपेंडेंट भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर के मशवरे का, कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और हुकूमत भी ये चाहेगी तो इस काम को करने में कोई मजाका उसमें भी नहीं है। तो मेरा ख्याल तजवीज़ तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर सदर जो है, सदर आप जैसा दानिशमंद हो तो वज़ीर आज़म को उससे मशवरा जो है उस पर भी कान धर लेना चाहिए। नहीं, वज़ीर आज़म साहब के साथ मुसलसल हर रोज नहीं तो हर दूसरे रोज किसी न किसी मौजू पर किसी न किसी अंदाज से गुफ्तगू होती रहती है। ये भी बात मैं उनके सामने जरूर रखूंगा। चलें, ये तो तय हो गया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए हमारी काविशें अपनी जगह, हमारे गिले शिकवे भी हैं, लेकिन OIC का भी बड़ा अहम किरदार है। क्या आप मसला कश्मीर के ऊपर OIC का जो अभी तक का किरदार है उससे मुतमईन है, तसल्ली है आपको, या अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान कैसे मज़ीद उनको झंझोड़ सकता है? मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो गुफ्तगू ये है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा बना 1945 में और पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में और कश्मीर के मसाइल शुरू हुए, अक़वाम मुत्तहिदा पर हम सब लोगों ने भरोसा किया, अक़वाम दुनिया ने भरोसा किया और हिंदुस्तान ये मसला लेकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गया। अच्छा, उसके बाद वक्त के साथ अगर आप तारीख देखें तो आपको अंदाजा ये होगा कि उसूली बुनियाद पर अक़वाम आलम ने फैसला कम करना शुरू किया और अपने वेस्टेड और बायलैटरल इंटरेस्ट और तिजारती इंटरेस्ट की बुनियाद पर उसूल कुर्बान किए गए। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे पाकिस्तान और तुर्की और ये जो रेनेसांस
है मुसलमानों का, जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो दोबारा अक़वाम आलम के दरमियान वो बात रखी जाएगी कि मुसलमान उसूलों की बुनियाद पर बैनुल अक़वामी सियासत करेगा। तो इस वक्त जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है वो अक़वाम मुत्तहिदा से भी है, और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो हमारी आवाज़ को अंदरून खाना भी लब्बैक कहते हैं, उनको मैं जो तिजारत की वजह से और मुख्तलिफ लिंक्स की बुनियाद पर वो इतने आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो जुल्म देखा, जिस अंदाज से देखा, तो इवन ये मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के अंदर लोग यानी सबसे ऊपर की सतह के लोगों के अंदर वो रिएक्शंस पैदा हुए। तो हिंदुस्तान जिस तरह से अपने आप को, भारत जिस तरह से अपने आप को आग लगा रहा है और जिस तरह से वो मुजालिम बढ़ा रहा है, तो आजकल दुनिया में जो इमेजरी आती है सोशल मीडिया के जरिए, और लिहाजा मैं जब कल तकरीर करूंगा तो मैं ये भी डिमांड करूंगा कि अगर सब कुछ पुरअमन है, सब कुछ ठीक है, तो दुनिया की प्रेस को आजाद कर वहां जाने दो। यहाँ आजाद कश्मीर में कोई जाना चाहे कोई रोकेगा नहीं, वहां आजाद कश्मीर जा नहीं सकते, डेलीगेशन जा नहीं सकते, जाकर खुद देख नहीं सकते। तो लिहाजा जी मकबूजा कश्मीर में लिहाजा होगा ये मकबूजा कश्मीर में, जी मकबूजा कश्मीर है। हमारे यहाँ आजाद कश्मीर में आप देखिए कितने आराम से सब जा सकते हैं। जी हम तो मिशन भी ले जाते हैं, कदम नहीं रखने देते, क्योंकि जुल्म के लिए जरूरी है कि अंधेरा हो, तो लिहाजा रोशनी के लिए रास्ते ही नहीं खोलेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए कि इस 365 दिनों में जो कल पूरे हो जाएंगे इस गैर कानूनी मुहासरे के, इसमें 200 मीडिया जिनको शहीद किया गया, कई बड़ी दिल दहलाने वाली तस्वीर भी हमने देखी, फिर कम अज़ कम कुछ 1300 या 1400 अफराद को ज़ख्मी किया गया, सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया गया। आपने खुद फरमाया कि 4 अरब से ज़ायद का ट्रिलियन का नुकसान भी हो तिजारत को भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक शनाख्ती सियासी तौर पर नौजवानों की बुनियाद पर वो ये थी कि सोशल मीडिया का बड़ा भरपूर यूज़ किया जाता था अपने सियासी मकासद को, पैगाम को आम करने के लिए। ये जो कश्मीरियों पर बीत रही है, इसको आम करने के लिए और दुनिया भर में डिसेमिनेट करने के लिए आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुतल्लिका विंग्स हैं उनको इसमें भी अपना बड़ा नुमायाँ किरदार अदा करना चाहिए, इस मैसेज को दुनिया भर में पहुँचाने के लिए, बशमूल जो हमारे सिफारत खाने मुख्तलिफ मालिक में? मैं तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से नहीं गुफ्तगू करूंगा, मैं सबसे ही करूंगा। मैं चाहता हूं कि सारा सोशल मीडिया, मैं तो पिछले साल से मुसलसल ये बात करता रहा हूं, और जब मैं इलेक्ट नहीं हुआ था और नेशनल असेंबली में था, जब भी मैं हुकूमत पर जो क्रिटिसिज्म करता था उसके अंदर या मशवरा देता था, उसके अंदर ये कहता था कि सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया का वो मीडियम है जो फौरन खबर को दुनिया तक पहुंचाता है। उसी सोशल मीडिया के जरिए ये तस्वीरें आप तक पहुंची हैं, वो जो जिसके नाना को मारा गया और बच्चे को उसके सीने पर बिठाया गया, ये सोशल मीडिया से दुनिया को पहुंचा और दुनिया को तकलीफ हुई। तो मैं तो सोशल मीडिया के हवाले से मैंने वजीर आजम साहब से भी कहा है, और सबसे मैं कहता हूं कि पाकिस्तान बजाते खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो भी पाकिस्तान की कॉज को, कश्मीर की कॉज को हर लेवल पर सोशल मीडिया के जरिए इसको उजागर ज्यादा करे। ये एक बड़ा अच्छी चीज है जो हर शख्स के हाथ में, कुछ चीजें तो हुकूमतें करती है ना, सोशल मीडिया तो हर शख्स के हाथ में। तो इसके अंदर हमारी जो अमन की फौज है और जो अमन चाहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अभिनंदन को भी वापस करता है इसलिए कि अमन का पैगाम देता है, उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया हर जमात का और हुकूमत का एक्टिव रहे। ठीक डॉक्टर साहब, ये यौम इस्तेहसाल और फिर नया पॉलिटिकल मैप, इस पे जो हमारे दोस्त ममालिक के इंतहाई करीबी, चाहे सऊदी अरेबिया हो या चाइना हो, इन ममालिक को हमने ऑन बोर्ड रखा हुआ है, इनकी तरफ से क्या उम्मीद है आपको? जी मैं समझता हूं कि इन ममालिक को ऑन बोर्ड भी रखा हुआ है, बल्कि चाइना तो आप देखिए लद्दाख के एतबार से जब इंडिया ने ये आर्टिकल के अंदर 370 के अंदर और 35A के अंदर तब्दीली की और जब रीऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर अभी जो पिछले दिनों फिर निकाला, इन सब के ऊपर चाइना ने तो बड़ा जोरदार ऑब्जेक्शन किया है और चाइना का एक बड़ा क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट है। और कारगिल को और लद्दाख को उन्होंने एक अलग टेरिटरी बनाई है और जम्मू और कश्मीर को एक अलग अंदाज से यूनियन का हिस्सा बनाया। तो चाइना भी इसमें मुसलसल हमारे साथ है, तुर्की हमारे साथ आगे बढ़कर बात करता है, मलेशिया ने भी, महातिर साहब ने भी, और मलेशिया की पॉलिसी मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी रहेगी। महातिर साहब के साथ जब बाकू में मुलाकात हुई थी तो महातिर साहब ने कहा था कि मलेशिया भी उसूलों पर इंशाअल्लाह कश्मीर के मामलात को अच्छी तरह से उठाता रहेगा। तो मेरी उम्मीदें सारे इस्लामी ममालिक से भी हैं और दुनिया अक़वाम आलम से भी है कि ये मामला कहीं ना कहीं हल होना चाहिए।
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ عالمی عدالت انصاف کا جو آپشن ہے کشمیر کا جو محاصرہ ہے 365 روز کا، اس پر کچھ وزارت خارجہ میں تو مشاورت ہوتی رہی، کیا آپ اس پہ مزید رہنمائی فرما سکیں گے؟ کیا پاکستان اس آپشن پر بھی غور کر رہا ہے یا ابھی نہیں؟ میرا خیال سے وہ آپشن کے حوالے سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپشن کے لیے شاید وہاں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دونوں ممالک بھی تیار ہوں اس بات کو کہ وہ عالمی عدالت میں جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ وہاں سے جو فیصلہ ہو سکتا ہے وہ انصاف کی بنیاد پر مختلف چیزوں پر تو ہو سکتا ہے، مگر ریئل جو چینج ہے اس کے لیے سلامتی کونسل اور یونائٹڈ نیشنز والا وہیں سے اس کا اصل حل نکلے گا۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے بڑی اچھی رپورٹیں دی ہیں، بتایا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کہ کس انداز سے یہ ظلم عورتوں پر بھی کس انداز سے ظلم کیا گیا، معیشت کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے فورمز پر پاکستان اور پاکستانیوں کو، کیونکہ یہ کام حکومت کا صرف نہیں ہے، میں ہر کام میں، جیسے کووڈ کا معاملہ صرف حکومت کا نہیں تھا، سارے پاکستانیوں نے اس میں کام کیا۔ تو آپ دیکھیے کتنا بڑا فرق، یعنی ہندوستان کی اور پاکستان کی ڈیموگرافی ایک سی ہے، جو نوجوان پرسنٹیج ہے وہ بھی ایک سا ہے، آب و ہوا ایک سی ہے، مگر ایک جگہ قوم نے کامیابی حاصل کی اور ایک جگہ معاملات خراب ہوئے۔ تو یہ قوم اگر مل کر کسی چیز کی جد و جہد کرے گی تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے گامزن کرے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، صدر مملکت پاکستان، اس اہم موضوع پر نقطہ نظر میں مخاطب تھے۔ ہم سب بریک آ گئی پروگرام میں، ملتے ہیں ناظرین اس چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو شامی صاحب، صدر مملکت کا تو یہ فرمانا ہے کہ یہ ایک علامتی اقدامات ہیں جن کا مقصد اپنی پوزیشن کو واضح کرنا اور دنیا کے سامنے اپنے موقف کو رکھنا ہے، یہ جو نقشہ نیا سیاسی جاری کیا گیا ہے۔ ہاں، ظاہر ہے اقوام متحدہ میں ہم جمع کرا دیں گے، گویا اپنے جذبات کا اظہار کر دیں گے، اور پاکستان کے اندر بھی ہم اپنے ٹیکسٹ بکس کے اندر اس نقشے کو شامل کر لیں گے، تو ہمارے یعنی داخلی طور پر ایک یکسوئی ہو سکے گی اس کے ذریعے۔ اور لیکن ظاہر ہے کہ یہ نقشہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اسے ایک دنیا بھر کے ممالک جو ہیں اس کو تسلیم کر لیں، اس لیے ہم نے خود ہی اسے پولیٹیکل میپ کہا ہے، پاکستان کا سیاسی نقشہ۔ یعنی تو یہ ہماری آرزو کا اظہار ہے، اور جو ہمارے دوست ہیں جتنے پر بلاخر اسے تسلیم کرتے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، خاور گھمن صاحب اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف دنیا نیوز اسلام آباد۔ وہ آج دفتر خارجہ میں موجود تھے، طویل بریفنگ لے کے آئے ہیں، اور جو سوال اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے ان کے اوپر دفتر خارجہ کیا جواب دیتے ہیں انہیں سے جان لیتے ہیں۔ گھمن صاحب بتائیے گا، جو متنازع حیثیت کا معاملہ تھا کہ نقشے میں شامل کر دیا تو وہ حیثیت کہاں رہ گئی، اس جیسے کئی اور سوالات اٹھ رہے ہیں، تو اس پر دفتر خارجہ کا کیا موقف ہے نئے سیاسی نقشے پر؟ دیکھیں جی، دو تین کلیریفیکیشن یہ ہیں جان صاحب، وہ کہ ایک تو موجودہ جو اے جے کی حیثیت ہے وہ اسی طرح رہے گی، گلگت بلتستان کو جس طرح مینج کیا جا رہا ہے وہی اسی طریقے سے چلے گا، اور ساتھ میں کوئی بھی اس نقشے کے دوران ایسی بات نہیں بتائی گئی جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان نے آج جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے اس کو پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور یہ بڑا واضح انہوں نے بتایا۔ پولیٹیکل میپ کی جو حیثیت ہے وہاں پہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر ملک کا ایک جو اس کو مدر میپ بولتے ہیں، تمام نقشوں کی ماں، اور آپ کا جو ٹرانسپورٹیشن میپ ہے، آپ کا ٹیلی کمیونیکیشن کا جو میپ ہے، انتظامیہ کا میپ ہے، وہ سارے اسی نقشے سے نکلتے ہیں۔ اس نقشے کو دوبارہ سے ریوائز کرنے کی ضرورت کیوں کر پڑی، یہ پوچھا گیا۔ وہاں پہ جو تمام ارباب اختیار تھے وہ تمام ریاستی اداروں کی طرف سے نمائندگی موجود تھی، پاکستان آرمی اسٹیبلشمنٹ، اور ساتھ میں جو ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ موجود تھے، اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے مشاہد حسین صاحب بھی وہاں پہ تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کچھ ابہام تھے پاکستان کی باؤنڈریز کے حوالے سے، ان کو دور کیا گیا ہے۔ سر کریک کے اوپر پاکستان کی کیا پوزیشن ہے، سیاچن کے اوپر کیا پوزیشن ہے، پاکستان کی جو اس وقت جو انلیگلی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے وہ کہاں تک بنتی ہے، کتنا حصہ ہے، اس کو کلیریفائی کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ یہ جو بحث چھڑی ہوئی ہے ایز اف کہ جی آج پاکستان ایک بہت ہی ایک کنٹروورشل سٹیپ اٹھایا ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
एक सवाल वहाँ पे पूछा गया जो अभी शामी साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि क्या ये नक्शा हम अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश कानूनी तौर पर कर सकते हैं। वहाँ पे लॉ मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा को ये बताना है, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल एक मुतनाज़ा इलाका है, उस पे पाकिस्तान का क्लेम है, डिस्प्यूटेड पे जो इंडियन फोर्सेस बैठी हुई हैं, तो वो जब तक ये जो मुतनाज़ा ये तनाज़ा UN की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने पड़ा हुआ है, जब तक इसका हल नहीं होता तब तक ये सर्टन हमारा क्लेम है और इंडियन ऑक्युपाइड तो ये घुमन साहब, ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी ब्रीफिंग में जब वज़ीर आज़म के साथ वो बैठे थे, ये बात कही थी कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ये नक्शा पेश करेंगे। तो इसी से फिर ये सवाल उठा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की कोई मंजूरी तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पेश किया जाएगा तो ज़ाहिर है एक आपके स्टेटमेंट के तौर पर वहाँ वसूल कर लिया जाएगा। देखिए जी, वो सदर पाकिस्तान ने जामी साहब जब आपने सवाल किया तो उन्होंने बड़ा कि जिस दिन हमारा ये नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा मान लेगी उस दिन तमाम जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। ये हमारा क्लेम है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, जो हमने अपना क्लेम रखा हुआ है वो ये है कि 1947 को जो एक वाहिद फार्मूला UN की सतह के ऊपर तय हुआ था, जो बरतानिया की हुकूमत ने कहा था कि जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, उसके ऊपर पूरी तरह अमल नहीं हुआ। इंडिया ने हमारे जो इलाके थे उसको ऑक्युपाई कर लिया। वो तनाज़ा आज मौजूद है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया गुमन साहब आपके वक्त का। सर जी जी शाम साहब, गुमन साहब की तारीख पर ज़रा नज़र कमज़ोर है। ये मामला जो था रियासतों का मामला अलग था, ब्रिटिश इंडिया का मामला अलग था, और अक़वाम मुत्तहिदा में जब खुद इंडिया गया था पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अक़वाम मुत्तहिदा में उसने ये तस्लीम किया था कि कश्मीर में रेफरेंडम होगा अक़वाम मुत्तहिदा के साए में, उसके इंतज़ाम में, और वहाँ ये हक़ मिलेगा कश्मीरी अवाम को कि फ़ैसला करें कि उन्हें पाकिस्तान के साथ शरीक होना है या इंडिया के साथ शरीक होना है। तो वहाँ से ये बात शुरू होती है और कश्मीर जो है एक बैनुल अक़वामी तौर पर मुतनाज़ा इलाका है और उसकी इस हैसियत में आज तक कोई तब्दीली नहीं हुई, और भारत ने जो कोशिश की उसे अटूट अंग करार देने की दुनिया का कोई मुल्क उसको तस्लीम नहीं करता। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, आज का दिन एक और हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज पूरे मुल्क में यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है, तमाम सूबों में, इस्लामाबाद बशमूल। तो आज इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब को ज़हमत दी है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर हम KPK का जिक्र करें तो यहाँ 1800 से ज़ायद शोहदा हैं पुलिस के, जिन्होंने मादरे वतन की हिफाजत की खातिर लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जानें कुर्बान की। सिंध में 2300 जवान बनते हैं। इसी तरह अगर इस्लामाबाद का जिक्र करें तो वहाँ 49 शोहदा बनते हैं। इस्लामाबाद की एक और ख़ास बात यह है, जो IG इस्लामाबाद हैं आमिर जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जो इस्लामाबाद के शोहदा हैं उनके फ़ंड्स बाकी सूबों के बराबर हो जाएँ। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पर फिर इसका अप्रूवल दिया पिछले साल, अब उनका शोहदा पैकेज भी इक्वलेंट हो चुका है। तो डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब सर लाइन पर मौजूद हैं, KPK के IG। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब। डॉक्टर साहब, ये मजमूई तौर पर कितने शहीद हैं पुलिस के, और सिंध पुलिस ने जो इदाद शुमार जारी किए हैं तो उसमें तो उन्होंने 1971 से लेके आज तक जितने शहीद हैं उनकी याद मनाने का ऐलान किया है। तो आपके जो इदाद शुमार हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं? मेहरबानी शामी साहब, हमारे भी शुरू से ही जब से मतलब ये पुलिस बनी है तो तकरीबन 1800 के करीब हैं जो रिकॉर्डेड हमारे पास हैं मौजूद। तो हम उनको ही सेलिब्रेट करते हैं और उनकी जानों ने कुर्बानियाँ जितनी दी हैं उनको ही सेलिब्रेट करते हैं और उन्हीं को याद करते हैं, और उन्हीं की कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से मुल्क में अमन अमान है। अलॉन्ग विद फौज आर्मी के साथ मिलके जो हमने ये टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ी, जो आखिरी जंग है हमारे हिसाब से तो आखिरी जंग होनी चाहिए, सो इसी 1800 के करीब है। जी हाँ, 4 अगस्त सिफत गयूर तो अब्बासी साहब, इस वक्त
इस वक्त जो सूरत हाल है और आप मुतमईन हैं कि आपने ये मार्कस सर कर लिया है दहशत गर्दों के खिलाफ? शामी साहब, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मैं कोई ये जो फाटा का मर्जर हुआ है ना, इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये जो ग्रे एरियाज थे ना फाटा के इलाके में, जो बाउंड्री पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान थी, अभी इसका जो मर्जर हुआ है इसके बड़े मेरे ख्याल में असरात होंगे, केपी पर भी होंगे और बाकी मांदा मुल्क पर भी होंगे और रीजन में भी होंगे, क्योंकि यही एरियाज थे जहाँ पे ये सारा कुछ तकरीबन हुआ। तो इसी वजह से उसमें 29,000 लेवीज एंड खासादार थे, वो उनकी एब्जॉर्प्शन भी हो गई है, उनकी ट्रेनिंग शुरू है, FIR रजिस्टर हो गई हैं, जो FCR का पुराना काला कानून था वो ख़त्म हो चुका है, लोगों को बुनियादी हुकूक मिल गए हैं। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ये बहुत इस लैंडमार्क और इससे बड़े फ़ायदे होंगे। और मेरे तो ख्याल में ख़त्म करना तो मैं इतना जल्दी से नहीं कहूँगा, लेकिन कंटेन ज़रूर हुआ है, डिक्रीज ज़रूर हुआ है। और जो आर्मी ने फेंसिंग की है इसका भी बहुत असर पड़ा है, बहुत। तो इसी वजह से मैं ये तो कह सकता हूँ कि कम जी 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 आज इस वक्त जो पुलिस की अमलदारी है और आपकी जो रिट है वो पूरे कबायली इलाके में नाफिज हो चुकी है। आपका दायरा इख्तियार जो है बिल्कुल पूरे कबायली इलाके तक अमली तौर पर कायम हो चुका है। हाँ बिल्कुल हो चुका है, लेकिन अभी क्योंकि ट्रांजिशन में है, अभी ये एब्जॉर्प्शन अभी हुई है, ट्रेनिंग होनी है, तो आर्मी की और FC की हमें जरूरत पेश जरूर आ रही है ट्रेनिंग के हवाले से और उनकी कुछ हवालों से। लेकिन अमल दरमंदी ये जो आप इम्प्लीमेंटेशन सिविलियन रूल्स की कह रहे हैं वो बिल्कुल हो चुकी है। एक उसका एग्जाम्पल मैं बताऊं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑनर किलिंग का वाकया हुआ था, स्टेट बिकम पार्टी, ये पहली मर्तबा हुआ फाटा के हिस्ट्री में 40 से लेकर आज तक, और वो बंदे भी गिरफ्तार हुए और SHO कंप्लेनेंट बना, वो गिरफ्तार हुए, वो अभी जेल में है, इंशाल्लाह वो सजाएं भी होंगी। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो हम सिविलियन अमल दरामद की ये जो थी इम्प्लीमेंटेशन वो हो चुकी है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। चलें सर, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। IG KP के हम मुखातिब थे दुनिया न्यूज़ से। अभी शाम साहब हमें ज्वाइन किया है CCPO लाहौर जनाब जुल्फ़िकार हमीद साहब ने। आज के दिन की मुनासबत से उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। कैप्टन मुबीन भी शहीद हुए थे, फिर सिफ़त गयूब साहब वहाँ शहीद हुए, और सैकड़ों और अहलकार कारकुनान ऐसे हैं पुलिस के जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार हमीद साहब आपके वक्त का। सर, पंजाब और लाहौर के स्टेटस क्या हैं शोहदा को अगर हम याद करें तो? जी, पंजाब के जी हमारे को 1550 के करीब जो हमारे पुलिस के जवान और अफसरान ने अपनी जाने जो है उनका नजराना पेश किया, और लाहौर के जो है वो 315 के करीब शो हैं जो पिछले कुछ अरसे में जिन्होंने वॉर ऑन टेरर के दौरान और इसी तरह जराइम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो जुल्फ़िकार साहब, जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनकी वेलफेयर वेलबींग के लिए पंजाब पुलिस कहाँ तक इक़दाम उठा रही है? जी, वो मैक्सिमम जो किया जा सकता है वो तमाम करते हैं। एक बड़ा लिबरल एक पैकेज है जो कि इस पे गवर्नमेंट से हमने अप्रूव कराया हुआ है। शोहदा की फैमिली को जैसे हम चूँकि समझते हैं कि जो शहीद हैं वो जिंदा है, तो इसलिए हम उनको ये एहसास नहीं होने देना चाहते कि उनको कोई तनख्वाह ना मिले, तो उनकी तनख्वाह मुस्तकिल जारी रहती है जब तक उनकी वैसे नेचुरल लाइफ होती। इसी तरह उनको गवर्नमेंट एक जो हमारा महकमा है वो एक घर लेके देता है ताकि उनके सर पर छत रहे, उनके बच्चों की तालीम के अखराजात जो है वो महकमा अदा करता है। उनको किसी भी किस्म का अगर कोई फाइनेंशियल बच्चों के स्कॉलरशिप के मुतालिक कोई और ऐसा इशू हो वो हम जरूर हल करवाते हैं। और अब तक हम इस पे जो करोड़ों रुपया है वो अल्हम्दुलिल्लाह खर्च कर चुके हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि शोहदा ने जो अपनी जान का नजराना पेश किया, इससे बड़े कोई कुर्बानी हो नहीं सकती। दो चीज़ें और हैं जुल्फ़िकार साहब जो आपके सामने रखनी है। एक तो ये देखिए कि पुलिस रिफॉर्म्स का हमेशा से जिक्र होता है, लेकिन अमली तौर पर उसमें क्या होता है वो आपको भी पता है, हमें भी। दूसरा, जो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें कमी कोताहियाँ, बजट के इशूज़ हैं, टेक्निकल इशूज़ हैं। तो ये दो शोहदा की कुर्बानी अपनी जगह, लेकिन ये दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो पंजाब पुलिस को दरपेश रहते हैं। इस सिलसिले में भी कोई प्रोग्रेस हुई है रिसेंट ईयर्स में, या ये मामला जूं का तूं है? जी, इसमें काफ़ी प्रोग्रेस जामी सब हो रही है, इन द सेंस कि इसके ऊपर जैसे पुलिस रिफॉर्म का जैसे इशू है, तो पुलिस रिफॉर्म के ऊपर आपको पता है कि IG साहब ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की एक पूरी स्कीम लॉन्च की। इसी तरह जो हमारे सिटीजन्स को
جو اپنی سروسز چاہیے ہوتی ہیں اس میں ان کی ظاہر پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے تو ان کو چکر نہ لگانے پڑیں، پریشانی نہ ہو، اس کے لیے جو ہم نے خدمت مراکز جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، جو ایپ کے ذریعے بھی اویلیبل ہیں، ویب سائٹ کے ذریعے بھی اویلیبل ہیں. کمپلینٹ ریڈرس کے لیے 8787 کا میکینزم بنایا گیا ہے. افسران جو ہیں وہ ہر وقت اویلیبل ہیں. تو اس کے اوپر ہر لمحہ ہماری وہ کوشش اور ایفرٹ جو ہے وہ جاری ہے. جو آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی اس میں ظاہر ہے کافی گنجائش ہے ابھی کام ہونے کی، ان دا سینس کہ جو اب ہم نے جو بھی سمری بھجوائی تھی کہ ریکروٹمنٹ کے اندر بہت سی ہماری ویکینسیز ہیں ان کو فل کیا جائے، اس پہ اب پروسیس ہوپفلی سپٹمبر میں سٹارٹ ہوگا. اسی طرح جو ہماری گاڑیوں کی کمی جو ٹریڈیشنلی آپ کو پتہ چلی آ رہی ہے، جب پیٹرولنگ افیکٹو ہوتی ہے تو کرائم اس سے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کے اوپر اب کچھ پروگریس ہو رہی ہے اور ہوپفلی کچھ دنوں میں ہے ہمیں تھانوں کے لیے گاڑیاں بھی چلے اللہ کرے ایسا ہو جائے، کیونکہ عمومی طور پر تو جو پیٹرولنگ کے لیے فیول درکار ہوتا ہے اس کا کوٹا ہی بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، اس میں ہو ہی نہیں پاتا. بہت شکریہ آپ کا ذوالفقار حمید صاحب. شامی صاحب یہ دو بہرحال ایشوز رہ جائیں گے، شہداء کو تو ہم یاد کرتے ہیں لیکن ریفارمز کا عمل اور جو صلاحیت کو مزید بڑھانا تھا اس اہم فورس کا وہ اپنی جگہ تشنا ہے. سر دیکھیے فوج جو ہے اس نے تو اپنی حفاظت کی ہے اور سیاستدانوں کی دست برد سے اپنے آپ کو بچایا ہے، لیکن پولیس نہیں بچا سکی جی. اور پولیس میں جو سیاسی مداخلت ہے اس نے اس ادارے کو تہوالہ کر دیا ہے. صحیح. اور آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان قائم ہوا تو اس وقت پولیس کا تحکم ایسا تھا کہ پولیس سٹیٹ کہتے تھے لوگ، یعنی پولیس سٹیٹ قائم ہو گئی ہے، پولیس کا اتنا روب تھا. جی اور جی بات پوری کر لیں سر پھر ختم. تو اب پولیس جو ہے اس کو اٹانومی دینی ہوگی، بالکل اس کے آئی جی کو ٹینیور دینا ہوگا. اور عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے اور جو خواب دکھائے تھے افسوس وہ پورے نہیں ہوئے. سر بریک کا وقت آن پہنچا. ناظرین ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.